ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਡੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 30। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫ ਨੂੰ ਸੀ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ 25 ਪਲੱਸ F1। ਇਹ ਹੁਣ F1 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕੋਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੁਣ M ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 30। ਤਾਂ M ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ 30 to 40 ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, N/2 CF F L1 ਐਂਡ C ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 10, L ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 30, CF ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਪਲੱਸ F1 N/2 N ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 75 ਪਲੱਸ F1 75 ਪਲੱਸ F1/2, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N/2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L1 ਪਲੱਸ N/2 ਮਾਈਨਸ CF/F ਇੰਟੂ C। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। M ਦਿੱਤਾ ਹੈ 30, L1 30 ਪਲੱਸ N/2, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 75 ਪਲੱਸ F1/2 ਮਾਈਨਸ CF ਕਿੰਨਾ ਆ 25 ਪਲੱਸ F1। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। F ਆ ਗਿਆ 30 ਇੰਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ 10। ਤਾਂ ਆ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ 30 ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 75 ਪਲੱਸ F1/2 ਮਾਈਨਸ 25, ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 25 ਮਾਈਨਸ F1/3। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ 30 ਮਾਈਨਸ 30 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ LCM ਆ ਗਿਆ 2/2। तो जो इक्वेशन में सॉल्व किया ये बन गया 25 माइनस F1/2 इज इक्वल टू 0। हुण ये 2 जो 0 के नाल मल्टीप्लाई हो गए 0 बन गया, ये बन गया 25 माइनस F1 इज इक्वल टू 0, माइनस F1 इज इक्वल टू 25 उधर जाके माइनस 25 माइनस के नाल माइनस कैंसल F1 आ गया साढ़े को 25। सो दिस इज आर आंसर। मिसिंग फ्रीकुएंसी साढ़े को आ गई 25। कई बार मीडियन दे विच तुहानूं शॉर्ट क्वेश्चन दे विच कुछ इदां दे स्पैशल केसिस आ सकते हैं। इत्थे मैं एक केस डिस्कस कर रही हाँ। स्टेटमेंट साडे कोल की है कि कुछ नंबर्स का सानूं मीडियन गिवन आ, दैट इज़ 48.63। हुण साडे कोल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस किन्ना आ सानूं नहीं पता, सीरीज़ साडे कोल सीरीज़ दे विच किस तरह किन्ने नंबर सी सानूं इहदे बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सानूं सीरीज़ का मीडियन दिता है दैट इज़ 48.67। इस तो बाद सानूं 6 ऑब्जरवेशनस होर दे दित्तियां
तो बोलिया गया कि इन्हां ऑब्जरवेशनस नूं अगर असीं इस सीरीज़ दे विच ऐड कर दईए जिस सीरीज़ तो सानूं ये मीडियन मिलिया सी 48.67 तो न्यू मीडियन की होएगा। हुण तुहाडे कोल डाटा तो सिर्फ कल्ला मीडियन दिता आ, मीडियन दे नाल तुहानूं इस सीरीज़ दे विच ऐड करन लई 6 नवीआं ऑब्जरवेशन देतियां। हुण तुसीं किवें फाइंड करोगे कि जिहड़ा नवां मीडियन आ ओह किन्ना होएगा, क्योंकि फॉर्मूले दे लई तां जो कुछ भी सानूं चाहीदा हुंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली असीं इहनूं 1 मिनट दे विच सॉल्व कर सकदे हां। हुण अगर असीं ध्यान दईए कि जदों असीं मीडियन की डेफिनेशन पढ़ी सी तो उहदे विच की पढ़िया सी, एक पोजीशनल मैजर आ। इहदे विच मैथेमैटिकली तो असीं कोई वैल्यूज़ नूं देखदे ही नहीं, असीं पोजीशन देखदे हां कि किस पोजीशन दे उपर साडी जिहड़ी ओह ऑब्जरवेशन आ। हुण मिडल वैल्यू हुंदी है, ओह एक मीडियन वैल्यू जिहनूं असीं बोलदे हां कि मिड दे विच किहड़ी वैल्यू आ। हुण अगर 48.67 मीन आ, मीडियन आ, दैट मीनस ये किसी सीरीज़ की मिड वैल्यू, मिडल दे विच ये ऑब्जरवेशन आउंदी आ, मिडल पोजीशन के उपर ये ऑब्जरवेशन आ। हुण अगर असीं नवीआं जिहड़ियां ऑब्जरवेशनस नूं ऐड करना, हुण या तो सीरीज़ साडे कोल असेंडिंग ऑर्डर होएगी या डिसेंडिंग होएगी। ये तो श्योर आ कि जदों असीं एक इंडिविजुअल सीरीज़ की गल करदे हां, ये इंडिविजुअल सीरीज़ ही गिवन आ, क्योंकि सिर्फ ऑब्जरवेशनस ही दित्तियां, फ्रीकुएंसीज तो नाल दित्तियां नहीं। तो दैट मीनस कि असीं जदों ये आंसर फाइंड किया होएगा सीरीज़ तो पहला या तो असेंडिंग ऑर्डर च लिखिया होएगा या डिसेंडिंग च लिखिया होएगा। ठीक है, तो हुण अगर असीं देखीए, अगर ये मिड पोजीशन ते आ, हुण जिहड़ी नवीं सीरीज़ आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूज़ असी कुछ वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ इस वैल्यू तो ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 48.67 ਆਂਸਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 7 वैल्यूज़ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ 5, 10, 15, 48.67, 50, 52, 96 आ सीरीज़ सी। इस सीरीज़ की देखिया सी ऑब्जरवेशन ये साढ़े कोल कितनियां 7 ऑब्जरवेशन का n+1/2 किया, 7+1/2 8/2 फोर्थ ऑब्जरवेशन साढ़े कोल मीन आ गया, मीडियन आ गया। हुण असी लेकिन ये 6 नवीआं वैल्यूज़ ऐड करनियां। चलो ठीक है, नवीआं वैल्यूज़ ऐड करते हैं, देखते हैं सीरीज़ किद्दां दी बनदी है। हुण जिहड़ियां ते आ वैल्यूज़ हैगियां, ये तुसीं देखो 33.5, 38.9, 43.57 ये सारियां वैल्यूज़ जिहड़ियां आ वो इस मीडियन वैल्यू तो छोटियां आ। हुण अगर छोटियां तो मतलब ये तीनों उपर ऐड होणगियां, ये किद्दां बन जूगी नवीं सीरीज़ की बनूगी हुण 5, 10, 15, 33.5, 38.9 एंड 43.57 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 6ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ 48.67 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 48.67 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, 48.67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਦੀਆਂ। अच्छा, हुण तुसीं देखो वे टोटल साडे कोल नंबर ऑफ जिहड़ियां ऑब्जरवेशनस आ कितना हो गया। पहले सी 7, हुण 7 दे नाल 6 होर ऐड हो गई, 13 हो गया, 7 ते 6 13। हुण साडे कोल नवीं सीरीज़ का n+1/2 कितना आएगा, 7/14/2 दैट इज़ 7th ऑब्जरवेशन। अच्छा, ये हुण जरा असीं अगर काउंट करके देखिए भी 7th ऑब्जरवेशन किहड़ी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 अगेन सेम आंसर दे विच कोई चेंज नहीं आया। बट उत्थे अगर एग्जाम तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाता तो तुहानूं इदां कोई भी अपने तो सीरीज़ सपोज करन दी लोड़ नहीं है, सिर्फ मैं तुहानूं समझाउण दे लई दस रही हाँ। अदरवाइज एक कॉमन सेंस दे नाल असीं देख सकते सी कि अगर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस उपर ऐड हो रहा, इक्वल ही नीचे ऐड हो रहा, तो की मिड पोजीशन दे विच कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। इक्वल नंबर असीं 3 वैल्यूज़ उपर ऐड कीतियां, 3 नीचे ऐड कीतियां, पोजीशन नहीं चेंज होएगी, मिड वैल्यू तो सेम, मिडल वाली पोजीशन तो सेम ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस करके इदां दे न्यूमेरिकल दे विच कुछ भी सॉल्व करन दी लोड़ नहीं सी। सिंपल असीं इहदे 2 लाइन्स दे विच इहदा आंसर दे सकते हैं कि बिकॉज इहदे विच जिहड़ियां सानूं 6 वैल्यूज़ दित्तियां आ, 3 ऑफ दीज 6 वैल्यूज़ आर लैस दैन 48.67, सो दैट मीन्स दीज 3 वैल्यूज़ विल बी एडिड अपॉन दिस मीडियन पोजीशन एंड द रिमेनिंग 3 वैल्यूज़ आर ग्रेटर दैन दीज मीडियन
value, therefore these three values will be added in the series below the median position. So that's why there will be no difference in the median value. इसी तरह का एक अनदर केस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਕਿ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੀਡੀਅਨ ਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ 45। ਹੁਣ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ 64 ਲੇਕਿਨ ਲਿਖ ਲਿਆ 46 ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो करैक्शन करने लिए हुण असीं देखांगे कि ये जो मीडियन है 45 करैक्ट वैल्यू साडे कोल जो है वो है 64 जो एक स्टूडेंट के गलत मार्क्स लिखे गए वो लिखे गए 46। अच्छा हुण जो 45 है इहदा मतलब अद्धे जो साडे कोल ऑब्जरवेशनस होणगियां वो 45 तो लैस होणगियां और हाफ जिहड़ियां वैल्यूज़ आ ग्रेटर दैन 45 होणगियां क्योंकि 45 मीडियन है तो मीडियन कित्थे होएगा मिडल दे विच मिडल पोजीशन ते होएगा। तो हुण अगर असी इनकरैक्ट डाटा देखिए साडे कोल जिहड़े 46 ते 64 वो दोनों वैल्यूज़ ही 45 तो वड्डियां आ। जे दोनों वड्डियां आ इहदा मतलब ये 45 तो बाद लिखियां गई अगर असी असेंडिंग ऑर्डर दे विच मार्क्स नूं लगाया होएगा दैन 45 तो दोनों नंबर वड्डे आ ते हुण तो कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि पोजीशन जिहड़ी आ वो मीडियन दे ना तो इस साइड तो शिफ्ट हुई है ना इस साइड तो। साडा मीडियन वैल्यू तद चेंज हो सकती सी कि अगर असी ये कह देंगे कि आ जिहड़ी वैल्यू आ वो 46 नहीं आ 43 आ। इनकरैक्ट वैल्यू 43 सीगी इहदा मतलब वो 43 असी इधर लिख ले जद के आने सी 64 इधर। तो अगर इदा हो जाता फिर तो पोजीशन चेंज हो जानी सी क्योंकि एक वैल्यू जिहड़ी छोटी वो वड्डे दे विच चलेगी जिहड़ी असी लिखनी सी लिख ली छोटे दे वल फिर तो पोजीशन चेंज होएगी। बट हुण तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि जिहड़ा चेंज आ वो चेंज साडे कोल सिर्फ एक साइड ते आया वो दोनों वैल्यूज़ ही इत्थे जिहड़ियां आ वो वड्डियां आ। इस तरह जो दोनों वैल्यूज़ ही छोटियां हुंदियां करैक्ट ते इनकरैक्ट तो भी मीडियन ते कोई फर्क नहीं सी पैना। इस केस मीडियन नहीं चेंज होएगा। इनू थोड़ा जिहा अगर असी एक एग्जाम्पल की हेल्प नाल समझण की कोशिश करिए सपोज मेरे कोल मार्क्स सीगे बच्चों के 20 मैं सीरीज़ नूं असेंडिंग ऑर्डर च लिखिया 30 45 55 एंड 64 या सपोज असी आई डाटा लिख लीए 46 एंड 64 सपोज ये सी। हुण इत्थे मीडियन साडे कोल इहदा हैगा आ 45 ठीक है दो वैल्यूज़ उपर आ दो वैल्यूज़ नीचे आ। हुण अगर मैं कहां कि एक बच्चे दे मार्क्स जिहड़े आ वो 46 की बजाय मेरे कोलों लिख हो गए वो 60 चलो लिखने सी 46 लिख दिते मैं 60 ठीक है चलो कोई गल नहीं 60 लिखोगे आप हुण सही कर दें 60 की जगह 46 लिख दें कि मीडियन च कोई चेंज आया नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन तो नीचे उन्नी ही 2 ही आ सिर्फ वो वैल्यू चेंज हुई है। या इदा हो सकता सी कि सपोज इत्थे नीचे साडे कोल वैल्यूज़ हैगियां 50 एंड 64 हुण एक बच्चे दे जिहड़े मार्क्स लिखते आपां 50 उहदे मार्क्स सीगे एक्चुअली 80 सीगे 50 कट्टते इत्थों 80 लिखते। हुण जदों 80 लिखांगे क्योंकि सीरीज़ असेंडिंग है तो 64 दे नीचे चले गए कोई गल नहीं नीचे चले गए लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन थोड़ी चेंज होया दो उपर सी हुण भी तो दो ही है वैल्यूज़ नीचे क्योंकि दोनों 45 तो वड्डियां सी चाहे 50 सी चाहे 80 सी रहा तो नीचे ही ना। तो इस करके नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन तो चेंज ही नहीं हुई सो इहदे विच असीं वैल्यू तो देखना ही नहीं हुंदा मीडियन दे विच साडा मतलब है कि इहदे नाल हुंदा ऑब्जरवेशन के नंबर नाल ते पोजीशन नाल हुंदा। तो हुण पोजीशन उहदी इत्थों चक के इत्थे चलेगी कोई चक्कर नहीं क्योंकि ये सारा चेंज कित्थे आया थल्ले थल्ले आया मीडियन तो मीडियन दे उपर तो नहीं इधर सीरीज़ दे विच किते गया। तो इस करके इहदा मीडियन ते कोई फर्क नहीं पेगा सिर्फ ये होया कि जिहड़ी वैल्यू 64 दे उपर सी वो हुण 64 तो नीचे चलेगी। जे यही वैल्यू
45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 45 ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਗਰ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ।